اسلام ہر گزرتے وقت کے ساتھ دنیا کی ایک بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سال 2050 تک یورپ کے کچھ کنٹریز میں مسلمز کی تعداد کروڑوں میں پہنچ جائے گی، اور یہ تعداد اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ جرمنی، برطانیہ اور فرانس جیسے کنٹریز کا بڑا حصہ مسلمز کا ہوگا۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ سال 2050 تک برطانیہ میں مسلمز کی آبادی ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی، تو کیا آپ یقین کریں گے کون سا یورپین کنٹری سال 2050 میں مسلمز کی سب سے بڑی آبادی والا کنٹری ہوگا؟ جرمنی، فرانس یا پھر کوئی اور؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سال 2050 میں وہ کون سے ٹاپ 10 یورپین کنٹریز ہوں گے جہاں مسلمز کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور ان یورپین کنٹریز میں سال 2050 میں مسلمز کی تعداد میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ راز فائلز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 10 سائپرس۔ نمبر 10 پر ہے سائپرس، جسے اردو میں قبرص بھی کہا جاتا ہے۔ اسے سال 1571 میں عثمانیوں نے فتح کیا۔ عثمانی فوج اور اناطولیہ سے آنے والے آباد کار وہیں رہ گئے، اور کچھ وہاں کے رہنے والے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، جنہیں بعد میں ترکش سائپرس کے طور پر شناخت کیا جانے لگا، اور کچھ سالوں تک یہی ان کی پہچان بن گئی۔ یہاں عثمانیوں نے سلیمیہ مسجد بھی قائم کی، جو آج تک نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ لوگ یہاں نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ آج شمالی قبرص میں اکثریت مسلمز کی ہے، جبکہ جنوبی قبرص کے علاقوں میں مسلمز کی تعداد بہت کم ہے۔ آج کی تاریخ میں سائپرس میں مسلمز کی کل تعداد تقریباً 2,75,000 ہے، جو سال 2050 میں بڑھ کر تقریباً 4,86,000 ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے سال 2050 میں سائپرس کی کل پاپولیشن کا 28% حصہ مسلمز کا ہوگا۔ نمبر 9 ناروے۔ ناروے یورپ کا ایک خوبصورت ترین ملک ہے۔ ناروے میں مسلمز کی ایک بڑی تعداد 1960 اور 70 کی دہائیوں میں مائیگریشن کی وجہ سے آئی، خاص طور پر پاکستان، ترکی اور مراکش سے، اور پھر بعد میں صومالیہ، عراق، افغانستان، شام اور بوسنیا سے بھی پناہ گزین یہاں رہنے کے لیے آئے۔ آج ناروے میں مسلمز کی سب سے بڑی کمیونٹی پاکستانی نژاد ہیں۔ اس کے بعد صومالی، عراقی، ترک اور بوسنیائی مسلمز ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمز اوسلو اور اس کے آس پاس کے شہروں میں آباد ہیں۔ ناروے میں 200 سے زیادہ مساجد اور اسلامی مراکز ہیں۔ یہاں مسلم کمیونٹیز کاروبار، سیاست اور تعلیم میں نمایاں ہو رہی ہیں۔ کئی پاکستانی نژاد اور دیگر مسلمان اب ناروے کی پارلیمنٹ اور بلدیاتی اداروں میں منتخب بھی ہو چکے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ناروے میں مسلمز کی کل تعداد تقریباً 2,50,000 ہے، جو سال 2050 میں 3 گنا سے بھی زیادہ بڑھ کر تقریباً 9 لاکھ ہو جائے گی، اور اس لحاظ سے سال 2050 میں ناروے کی کل پاپولیشن کا 17% حصہ مسلمز کا ہوگا۔ نمبر 8 ڈنمارک۔ ڈنمارک یورپ کے ان کنٹریز میں شامل ہوتا ہے جہاں مہاجرین اور اسلام پر بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ برقع یا نقاب پر پابندی جیسے قوانین بھی اسی پس منظر کا حصہ ہیں۔ ڈنمارک کی مساجد اکثر پرانی عمارتوں کو خرید کر بنائی گئی ہیں، اور چند ہی مساجد ایسی ہیں جن میں باقاعدہ طور پر مینار ہیں۔ ڈنمارک میں مسلم صرف مذہبی ہی نہیں بلکہ دیگر سرگرمیوں جیسے سپورٹس اور آرٹس میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ کئی مسلم کھلاڑی مثلاً فٹ بالرز ڈنمارک کی قومی ٹیم اور کلبز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہاں کی مسلم سوسائٹیز انٹر کلچرل ڈائلاگ اور سماجی ہم آہنگی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ڈنمارک کے مسلمز نہ صرف ایک مذہبی کمیونٹی ہیں بلکہ وہ سیاست، معیشت، کھیل اور ثقافت میں بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اگرچہ انہیں وہاں چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن وہ ڈنمارک کی شناخت کا مستقل حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ڈنمارک میں مسلمز کی کل تعداد تقریباً 3,54,000 ہے، جو سال 2050 میں 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ کر تقریباً 10 لاکھ ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے سال 2050 میں ڈنمارک کی کل پاپولیشن کا 16% حصہ مسلمز کا ہوگا۔ نمبر 7 آسٹریا۔ 16 اور 17 سینچری میں عثمانی سلطنت اور آسٹریا، جو اس وقت ہابسبرگ سلطنت کہلایا جاتا تھا، ان کے درمیان بہت طویل دورانیے کی جنگیں ہوئیں۔ کچھ مسلمان فوجی اور تاجر وہیں پر آباد ہو گئے، اور پھر سال 1912 میں آسٹریا نے اسلام کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ اس وقت آسٹریا کے لیے ایک بہت اہم موڑ تھا، کیونکہ یورپ میں سب سے پہلے آسٹریا نے ہی اسلام کو سرکاری مذہب کے طور پر تسلیم کیا۔ آج آسٹریا میں مسلمز کی سب سے بڑی کمیونٹی ترک نژاد ہے، جبکہ 1990s کی بوسنیا جنگ کے بعد بڑی تعداد میں بوسنیا کے مسلمان آسٹریا آ کر آباد ہو گئے۔ آج آسٹریا میں سب سے زیادہ مسلمز ویانا سٹی میں رہتے ہیں۔ آسٹریا کے ویانا سٹی میں مسلمز کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ تعداد آسٹریا کے کل مسلمز کا تقریباً آدھا حصہ ہے۔ آسٹریا میں اسلام کو باضابطہ حیثیت حاصل ہے۔ مسلم سٹوڈنٹس کو سکولز میں اسلامیات پڑھنے کا حق دیا جاتا ہے۔ آسٹریا میں تقریباً 300 سے زائد مساجد اور اسلامی مراکز ہیں۔ آسٹریا کے ویانا سٹی
कम्युनिटी में मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान डायलॉग्स भी होते हैं जो देखने लायक होते हैं। आज की डेट में ऑस्ट्रिया में मुस्लिम्स की कुल तादाद 7,66,000 है, जो साल 2050 में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर तकरीबन 24,50,000 होने वाली है। और इस लिहाज से साल 2050 में ऑस्ट्रिया की कुल पॉपुलेशन का 20% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 6 नीदरलैंड्स। नंबर 6 पर है नीदरलैंड्स, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम के बाद नीदरलैंड्स में मजदूरों की शदीद कमी थी। 1960 और 70 की दहाई में तुर्की और मराकश से बड़ी तादाद में गेस्ट वर्कर्स बुलाए गए। बाद में सूरीनाम, अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया और शाम से भी मुसलमान महाजरीन और पनाहगजीन यहाँ आए। यहाँ सबसे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी तुर्क नयाद है, जबकि सबसे ज्यादा मुस्लिम्स एम्स्टरडैम, रोटरडैम और दी हैग में रहते हैं। रोटरडैम यूरोप के उन बड़े शहरों में शुमार होता है जहाँ मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। नीदरलैंड्स में तकरीबन 500 से ज्यादा मसाजिद हैं, जो ज्यादातर तुर्किश और मराकश कम्युनिटीज ने तैयार की हैं। कई मराकश और तुर्क नयाद पॉलिटिशियंस और मेयर्स, मसलन रोटरडैम के मेयर अबू तालब, यूरोप में कामयाब मुस्लिम लीडर्स की मिसाल हैं। आज की तारीख में नीदरलैंड्स में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 10 लाख है, जो साल 2050 में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर तकरीबन 25 लाख हो जाएगी। इस लिहाज से साल 2050 में नीदरलैंड्स की कुल पॉपुलेशन का 15% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 5 बेल्जियम। बेल्जियम भी यूरोप का खूबसूरत तरीन मुल्क है। यहाँ के ज्यादातर लोग आजाद ख्याल यानी ओपन माइंडेड होते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक अहम तरीन मुल्क है और यहाँ मुस्लिम्स की एक बड़ी तादाद आबाद है। सबसे ज्यादा मुस्लिम्स ब्रसल्स में आबाद हैं, जो इस शहर की कुल आबादी का 25% बनते हैं। इसके बाद एंटवर्प और लीक में भी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं। बेल्जियम में तकरीबन 400 मसाजिद हैं, जो ज्यादातर तुर्किश और मराकश कम्युनिटीज ने कायम की हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बेल्जियम एक आजाद ख्याल मुल्क है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेल्जियम ने साल 1974 में ही इस्लाम को सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया, जिसके बाद मुस्लिम्स को यहाँ स्कूल्स और मसाजिद में रियासत की जानिब से सपोर्ट भी मिलती है। आज की तारीख में बेल्जियम में मुस्लिम्स की कुल तादाद 7,20,000 है, जो साल 2050 में बढ़कर 25,80,000 हो जाएगी। इस लिहाज से साल 2050 में बेल्जियम की कुल पॉपुलेशन का 18% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 4 स्वीडन। स्वीडन में भी मुस्लिम्स की आमद दूसरी जंग अजीम के बाद शुरू हुई। 1960 और 70 की दहाई में तुर्की और यूगोस्लाविया से मजदूर यहाँ गेस्ट वर्कर्स के तौर पर आए, जो बाद में स्वीडन में ही आबाद हो गए। जबकि 1980 और 90 की दहाई में ईरान, इराक और सोमालिया से बड़ी तादाद में पनाहगजीन यहाँ आकर आबाद हुए। स्वीडन में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स स्टॉकहोम और इसके नवाही इलाकों में आबाद हैं। इसके बाद माल्मो और गोथमबर्ग में बड़ी मुस्लिम कम्युनिटीज मौजूद हैं। स्वीडन के स्कूल्स में भी मुस्लिम स्टूडेंट्स को रमजान और ईद के दिनों में काफी ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं। स्वीडन में हलाल फूड इंडस्ट्री भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम्स के साथ साथ अब नॉन मुस्लिम्स भी हलाल फूड को खाना पसंद कर रहे हैं। स्वीडन में राइट विंग पार्टीज भी काफी ज्यादा सरगर्म हैं, जो अक्सर मुस्लिम्स के बारे में मनफी बयानियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऐसे वाकयात बहुत कम होते हैं। और स्वीडन गवर्नमेंट भी मुस्लिम्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। आज की तारीख में स्वीडन में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 9,78,000 है, जो साल 2050 में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 26,30,000 हो जाएगी। और इस लिहाज से साल 2050 में स्वीडन की कुल पॉपुलेशन का 31% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम। बरतानिया में मुस्लिम सदियों से आबाद हैं, मगर यहाँ मुस्लिम्स की बड़ी कम्युनिटीज 19th और 20th सेंचुरी में आबाद हुई। बरसगीर पाको हिंद से लोग बड़ी तादाद में यहाँ तजारत और तालीम हासिल करने के लिए आए। 1950 और 70 की दहाई में मजदूर और महाजरीन भी यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचे, क्योंकि उस वक्त बरतानिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू हो चुका था, तो बरतानिया को भी बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों की जरूरत थी। तो यहाँ सबसे ज्यादा आमद पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और बाद में मशरक़ वस्ता से हुई। बरतानिया में मुस्लिम्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी नयाद हैं, जबकि सबसे ज्यादा मुस्लिम्स लंदन में आबाद हैं। लंदन की तकरीबन 15% आबादी मुस्लिम्स की है। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और लीड्स में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम्स आबाद हैं। बरतानिया में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा मसाजिद हैं, जिनमें कुछ बड़ी और मशहूर मसाजिद भी शामिल हैं। ईस्ट लंदन मॉस्क और लंदन सेंट्रल मॉस्क बरतानिया में मशहूर तरीन मसाजिद में से एक हैं। यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटीज बहुत स्ट्रांग मानी जाती हैं। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटीज ने अपने मदारस, स्कूल, मीडिया चैनल्स और तंजीमें कायम कर रखी हैं। सादक खान लंदन के मेयर दुनिया के सबसे नुमाया मुस्लिम सियासतदानों में से एक हैं,
जबकि दर्जनों मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुस्लिम्स की नुमाइंदगी करते हैं। आज की तारीख में बरतानिया में मुस्लिम्स की कुल तादाद 45 लाख है, जो साल 2050 में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख हो जाएगी। और इस लिहाज से साल 2050 में बरतानिया की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 18% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 2, फ्रांस। आज की तारीख में फ्रांस में मुस्लिम्स की तादाद यूरोप में सबसे ज्यादा है, लेकिन साल 2050 तक कोई दूसरा कंट्री इसकी जगह लेने जा रहा है। अगर आपको पहले से मालूम है तो अभी कमेंट सेक्शन में जवाब दें। फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स पेरिस और इसके नवाही इलाकों में आबाद हैं। पेरिस की ग्रेट मस्जिद ग्रैंड मॉस्क दी पेरिस यूरोप की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। यहाँ रमजान के महीने का एहतराम भी किया जाता है और ईदें भी बड़े पैमाने पर मनाई जाती हैं। फ्रांस में भी हलाल फूड इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। फ्रांस की फुटबॉल टीम के कई खिलाड़ी मुस्लिम्स हैं, जो फ्रांस में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं, मसलन ज़ैनुद्दीन ज़िदान और करीम बेंजेमा वगैरह। फ्रांस में मुस्लिम नौजवान यूनिवर्सिटीज, बिजनेस और आर्ट्स में नुमायां हो रहे हैं। आज की तारीख में फ्रांस में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 60 लाख है, जो साल 2050 में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख हो जाएगी। और इस लिहाज से साल 2050 में फ्रांस की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 19% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। नंबर 1, जर्मनी। जर्मनी साल 2050 में यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री बनने जा रहा है, जबकि ये आज की तारीख में यूरोप का दूसरा बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री है। जर्मनी में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स वेस्टफीलिया में रहते हैं, जहाँ कोलून और डॉर्टमंड जैसे शहर हैं। बर्लिन और हैम्बर्ग में भी बड़ी मुस्लिम आबादी मौजूद है। वेस्ट जर्मनी में मुस्लिम्स की तादाद ईस्ट जर्मनी के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। जर्मनी में तकरीबन 3000 से ज्यादा मसाजिद और इस्लामिक सेंटर्स हैं। जर्मन फुटबॉल टीम के कई स्टार खिलाड़ी मुस्लिम बैकग्राउंड के हैं, मसलन सऊद ओजेल। आज की तारीख में जर्मनी में मुस्लिम्स की कुल तादाद तकरीबन 60 लाख है, जो साल 2050 में 3 गुना बढ़कर तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख हो जाएगी। और इस लिहाज से साल 2050 में जर्मनी की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 20% हिस्सा मुस्लिम्स का होगा। तो ये थे वो टॉप 10 मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज इन यूरोप, जहां मुस्लिम्स की तादाद साल 2050 में सबसे ज्यादा होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल राज फाइल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।